Hello my dear students, good evening everyone. We'll discuss today the functioning of ecosystem. In the previous classes we have discussed the levels of organization and in just the previous class we have discussed the structure of ecosystem. The ecosystem is made up of two components, that is what biotic components and abiotic components. The abiotic components are like air, soil, water, temperature, humidity, rainfall, ये abiotic components हैं. और biotic components the living components, and the living components are classified under three parts, that is what producers, consumers and decomposers. Consumers are further classified into three parts, that is what herbivorous, carnivorous and omnivorous. And we will discuss today the functioning of ecosystem. So the functioning of ecosystem it is studied under energy flow. Second one, cycling of materials, and that is what biogeochemical cycles, and the third one ecosystem development. So the functioning of the ecosystem, it can be studied under three parts, that is what energy flow, cycling of materials, that is what biogeochemical cycles, and ecosystem development. In class 10th standard आपको जो डिस्कस करना है वो एनर्जी फ्लो डिस्कस करना है. 10th स्टैंडर्ड के अंदर आपको एनर्जी फ्लो डिस्कस करना है, एंड एनर्जी फ्लो इज नथिंग बट it is the trophic level interaction. This is the trophic level interaction. और क्लास 9th के अंदर you already discussed the biogeochemical cycles, that is what the nitrogen cycle, carbon cycle, ऑक्सीजन साइकिल, वाटर साइकिल, आपने ये साइकिल्स डिस्कस करी थी. एंड ड्यूरिंग द डिस्कशन ऑफ द साइक्लिंग ऑफ द मटेरियल्स हमने बायोजियोकेमिकल साइकिल्स को डिस्कस किया. एंड यू विल कम इन द +1 एंड +2 यू विल डिस्कस द इकोसिस्टम डेवलपमेंट, दैट इज ऑल्सो नोन एज इकोलॉजिकल सक्सेशन. तो अभी आपको क्लास 10th स्टैंडर्ड के अंदर जो करना है वो एनर्जी फ्लो डिस्कस करना है. तो हम ये कहें कि जो एनर्जी फ्लो है दैट इज ऑल्सो नोन एज ट्रॉफिक लेवल इंटरेक्शन, दैट इज ऑल्सो नोन एज ट्रॉफिक लेवल interaction. It is a trophic level interaction. और ट्रॉफिक लेवल इंटरेक्शन हम डिस्कस करेंगे. इट इज स्टडीड अंडर three parts, that is what
food chain, second one food web, and third one ecological pyramids. Ecological pyramids. तो आपको बेटा क्लास 10th स्टैंडर्ड के अंदर जो डिस्कस करना है वो आपको डिस्कस करना है एनर्जी फ्लो, दैट इज़ व्हाट ट्रॉफिक लेवल इंटरेक्शन आपको डिस्कस करना है, एंड विल डिस्कस द एनर्जी फ्लो वन बाय वन। पहला हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ व्हाट द फूड चेन। तो फूड चेन क्या है पहले हम ये डिस्कस करेंगे। फूड चेन है who eats whom is known as food chain. Who eats whom, this is known as food chain. कि इकोसिस्टम के अंदर एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खा रहा है, तो इकोसिस्टम के अंदर कौन किसको खाता है, दैट मेक्स अ फूड चेन। द हु ईट्स होम इज नॉन एज फूड चेन। फॉर एग्जाम्पल, द ग्रास, इट इज टेकन बाय grasshopper, grasshopper is taken by frog, frog is taken by snake, and the snake is taken by hawk. ये हमारा एक फूड चेन है, ये एक ट्रॉफिक लेवल है, ये एक ट्रॉफिक लेवल है, ये एक ट्रॉफिक लेवल है। सो दीज आर द ट्रॉफिक लेवल्स। घास को कौन खाता है, ग्रासहोपर खाता है। ग्रासहोपर को कौन खाता है, फ्रॉग खाता है। फ्रॉग को कौन खाता है, स्नेक खाता है। और स्नेक को कौन खाता है, हॉक खाता है। सो हु ईट्स होम इज नॉन एज फूड चेन। द हु ईट्स होम इज नॉन एज फूड चेन। कौन किसको खाता है, दैट मेक्स ए फूड चेन। और यू कैन डिफाइन इट लाइक दिस, it is a sequence of organisms where one organism is taken or eaten by another organism in the ecosystem, that is known as food chain. Okay, इस फूड चेन के अंदर जो एनर्जी फ्लो होगा दैट इज अकॉर्डिंग टू 10% लॉ। सो the energy flow होगा that is according to, it is according to 10% law. The energy flow, it occurs according to 10% law. 10% law क्या है कि सन है, सन ने हमें एनर्जी दी 1 लाख जूल। सन जितनी एनर्जी देता है उस एनर्जी का 1% एनर्जी है, इट इज ट्रैप्ड बाय द प्लांट्स। सो इसका 1% ऑफ दिस, तो इसका 1% कितना हो गया, 1% ऑफ दिस, इससे 2 जीरो हटा दो तो 1000 जूल एनर्जी यहाँ पर आ जाएगी। सन और प्लांट्स के बीच में हमारा 10% लॉ नहीं लगेगा।
इसके बाद में आगे जो एनर्जी का फ्लो होगा वो 10% लॉ के अकॉर्डिंग हो जाएगा। सन हमें जितनी एनर्जी देता है उसकी 1% एनर्जी है, इट इज टेकन बाय द प्लांट्स। इसका मतलब ये हुआ कि सन सस्टेन्स द लाइफ ऑन अर्थ बाय इट्स 1% एनर्जी। अब आप देख लें कि हमारी अर्थ के ऊपर जो जीवन चल रहा है वो सन की 1% एनर्जी से चल रहा है। Because the plants can only trap the 1% energy of the sun, and it is the plants, they has the capacity to trap the energy, that is because of chlorophyll, and that is only 1%, and made that energy available to the rest of the world, the animal world. So sun sustains the life on earth. Sun is the ultimate source of all energy on the earth, and sun supports the sustains the life on earth by its 1% energy only. इसके बाद में आगे जो एनर्जी का ट्रांसफर होगा that is according to 10% लॉ। तो 10% लॉ क्या बोलता है कि जितनी एनर्जी अवेलेबल है एट ए पर्टिकुलर ट्रॉफिक लेवल, उसकी 10% एनर्जी है, इट विल ट्रांसफर टू द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल सक्सेसिवली, एंड ड्यूरिंग ईच ट्रांसफर द 90% एनर्जी विल लॉस टू द सराउंडिंग इन द फॉर्म ऑफ हीट, एंड दिस इज नॉन एज 10% लॉ। सो अकॉर्डिंग टू 10% लॉ, इसका 10% एनर्जी 100 जूल एनर्जी यहां पर आएगा, एंड ड्यूरिंग दिस ट्रांसफर 900 joule of energy will lost to the surrounding in the form of heat। फिर आगे इसका 10% एनर्जी यहाँ जाएगा तो वो जाएगा 10 जूल, एंड ड्यूरिंग दिस ट्रांसफर द 90 जूल ऑफ एनर्जी will lost to the surrounding in the form of heat। फिर इसका 10%, 10 जूल का 10% हो गया है 1 जूल, 1 जूल एनर्जी यहाँ पर आएगी, एंड ड्यूरिंग दिस ट्रांसफर द 9 जूल ऑफ एनर्जी विल लॉस्ट टू द सराउंडिंग इन द फॉर्म ऑफ हीट। फिर इसका 10% एनर्जी दैट इज व्हाट 0.1 जूल एनर्जी हॉक के अंदर आएगी, एंड ड्यूरिंग दिस ट्रांसफर द 0.9 joule energy will lost to the surrounding in the form of heat. This is the 10% law। तो 10% law क्या बोलता है? According to 10% law, the 10% energy of the total available energy at a particular trophic level will transfer to the next trophic level successively, and during each transfer the 90% energy lost to the surrounding in the form of heat, and this is what the 10% law। तो इकोसिस्टम के अंदर जो एनर्जी का ट्रांसफर होता है that is according to 10% law। ध्यान रहे 10% law is not applicable in the case of sun and the plants। यहां पर 10% law applicable नहीं है। The plants of the world they can only trap the 1% energy of the sun। After the plants the 10% law is applicable। Now इस 10% law के एप्लीकेशंस ये होंगे कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं आपके आसपास में जो चल रही है, 10% लॉ आपको एक्सप्लेन करेगा। सो विल डिस्कस द एप्लीकेशंस ऑफ द 10% लॉ। सो द एप्लीकेशंस ऑफ
10% लो। पहला एप्लीकेशन है फ्लो ऑफ एनर्जी, इट इज यूनिडायरेक्शनल। द फ्लो ऑफ एनर्जी, दिस इज यूनिडायरेक्शनल। मतलब प्लांट्स ग्रास को ग्रासोफर खाएगा, ग्रासोफर को फ्रॉग खाएगा, फ्रॉग को स्नेक खाएगा, स्नेक को हॉक खाएगा। सुना है कभी कि घास है ग्रासोफर को खा गई? आपने सुना है कि हाँ उसके चौधरी साहब के खेत के अंदर है वो बकरी है, चौधरी साहब को खा गई? कभी सुना है ऐसा? चौधरी साहब बकरी को खाएंगे, बकरी चौधरी साहब को नहीं खाएगी। अरे हाँ उसके मांगूराम के खेत के अंदर है, वहां पर गन्ने की फसल उगी हुई थी, वो गन्ने की फसल 2 गायों को खा गई। ऐसा सुना आपने कभी? ऐसा नहीं होता है। होता क्या है कि बकरी घास को खाएगी और चौधरी साहब है वो बकरी को खाएंगे, बकरी चौधरी साहब को कभी नहीं खाएगी। गन्ने का जो पत्ते हैं या गन्ने के आसपास जो घास है उसको गाय खाएगी, गन्ना गाय को कभी नहीं खाएगा, बिकॉज द फ्लो ऑफ एनर्जी इज यूनिडायरेक्शनल। द क्वेश्चन इज व्हाई द फ्लो ऑफ एनर्जी इज यूनिडायरेक्शनल? बिकॉज in a food chain, in the ecosystem, the energy flow occurs according to 10% law, and according to 10% law, the 10% energy of the total available energy at a particular trophic level transfer to the next trophic level successively, and during each transfer the 90% energy lost to the surrounding that cannot be recaptured back. That's why the flow of energy is unidirectional. इसको आप इस तरह से समझिए कि ये जो फूड चेन है ये किसी जंगल का टोटल एनर्जी को बता रहा है। एक जंगल है और उस जंगल के अंदर जितने भी प्लांट्स हैं उनमें टोटल एनर्जी 1000 जूल है, उस पूरे जंगल में। अज्यूम कर लो, मान लो। अब उस घास पे जितने ग्रासोपर जिंदा रहेंगे और उन ग्रासोपर्स के अंदर जो टोटल एनर्जी होगी वो 100 जूल होगी। घास ग्रासोपर को खाके जिंदा रह जाएगी अगर उस जंगल के सारे ग्रासोपर मिलके घास को 1000 जूल एनर्जी दे दे, लेकिन वहां पर सारे के सारे ग्रासोपर मिलके कितनी एनर्जी दे रहे हैं? 100 जूल। तो इसलिए एनर्जी का फ्लो उल्टा नहीं हो सकता, वो एक डायरेक्शन में भी होगा, प्रोड्यूसर्स एंड ऑनवर्ड्स। बिकॉज ड्यूरिंग द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी the 90% energy that lost to the surrounding in the form of heat that cannot be recaptured back, that's why the flow of energy is unidirectional. अब आप में स्टूडेंट एक्स है, उसका मूड बदल गया कि मैं तो इकोसिस्टम के अंदर एक उल्टी कहानी लिखूंगा। कह रहा मैं तो हॉक खा के जिंदा रहूंगा। खा ले वही हॉक। अरे हॉक मिलेंगे कितने? पूरे करनाल शहर में तेरे को मुश्किल से एक हॉक मिलेगा, तो एक हॉक को खा के क्या पूरा वीक जिंदा रहेगा? और वैसे भी हमारा मेडिकल साइंस है, हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी इतना एडवांस हो गया है, हमने इतनी दवाएं बना ली है कि आपका जो हॉक होगा ड्यू टू द बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन उसकी बॉडी के अंदर इतना पेस्टिसाइड होगा, एक हॉक खाओगे तो दूसरा हॉक खाने के लिए जिंदा नहीं रहोगे। तो इसीलिए द फ्लो ऑफ एनर्जी इज यूनिडायरेक्शनल। सेकंड है a food chain have limited number of
trophic levels. A food chain have limited number of trophic levels. मतलब ये हुआ कि ट्रॉफिक लेवल 1, ट्रॉफिक लेवल 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक मैक्सिमम ट्रॉफिक लेवल है, वो 6 या 7 तक हो सकते हैं। क्योंकि भाई एनर्जी डिक्रीज हो रही है अकॉर्डिंग टू 10% लॉ, और एनर्जी डिक्रीज होते होते बहुत कम होती चली जाएगी, फर्दर उसको ऑर्गेनिजम्स खा के जिंदा नहीं रह सकते। दैट्स व्हाई फूड चेन हैव द लिमिटेड नंबर ऑफ ट्रॉफिक लेवल्स। यू कैन एक्सप्लेन इट इन डिटेल कि a food chain have the limited number of trophic levels because in a food chain energy transfer occurs according to 10% law, and according to 10% law energy decreases successively. At the last trophic level the energy available will be so minimum that further organisms by eating that it cannot survive. That's why a food chain have the limited number of trophic levels. तीसरा एप्लीकेशन, वेजिटेरियन फूड हैबिट्स। Vegetarian food habits provide more energy. The vegetarian habits provides more energy. You are more close to the producers, you will get more energy. This is because of 10% law. You are more away from the producers, you will get less energy. That is because of 10% law. आपके सामने है कि अगर मैं ये फूड चेन बनाऊं, that plant food, और उसमें एनर्जी है 1000 जूल, और मैन है प्लांट फूड डायरेक्टली खाता है तो इसका 10% आया 100 जूल। ये हमारी एक वेजिटेरियन फूड हैबिट है। हमारी दूसरी फूड हैबिट है नॉन वेजिटेरियन प्लांट फूड। इसमें 1000 जूल एनर्जी है, and in the non-vegetarian food habit, plant food, it is taken by God and the God is taken by man. प्लांट फूड के अंदर 1000 जूल एनर्जी है, इसका 10% यहाँ पर आया, ये हो जाएगा 100 जूल, और इसका 10% यहाँ पर आएगा, ये होएगा 10 जूल। तो ये हो गई हमारी नॉन वेजिटेरियन फूड हैबिट। अब आप देखिए बेटा यहाँ पे कि वेजिटेरियन फूड हैबिट के अंदर मैन को मिल रहा है 100 जूल एनर्जी, और नॉन वेजिटेरियन फूड हैबिट में मैन को मिल रही है 10 जूल एनर्जी। दैट मीन्स according to 10% law, if you are closer to the producer you will get more energy, if you are away from the producers you will get less energy. So this is all about the applications of 10% law. So this is all about the food chain, and the next food web. We are discussing the energy flow or the trophic level interaction. In the energy flow or the trophic level interaction, we had covered food chain, and now we have to discuss food web. Food web क्या है? The interconnection of various food chains is known as food web, or the network of various food chains is known as food web. Now food web है, ये मैं आपको स्क्रीन शेयर करके समझा रहा हूँ।
तो इसमें स्क्रीन शेयर करने के बाद में आप इसमें देखेंगे कि व्हाट इज एक्चुअली द फूड वेब. सो ऑन द स्क्रीन नाउ देयर इज द फूड वेब. अब आप इस स्क्रीन पे एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पे देखेंगे तो देयर इज ए एक्वेटिक फूड चेन that hydrilla plants, they generally grows in the water bodies, and over the hydrilla plants there are some insects and worms and some animals जो छोटे बॉडी साइज के हैं वो उन प्लांट्स को खाते हैं. And these small sized animals are eaten by the fish. The fish is taken by pelican or the flamingo, and the flamingo is taken by loin. इसी के पास में राइट साइड पे आप होगे तो दूसरी फूड चेन है दैट ग्रास इज टेकन बाय ग्रास होपर. अब इसने ये जो फूड चेन आपको दिखा रखी है ये फूड चेन गलत दिखा रखी है. इसमें दिखा रखा है द ग्रास इज टेकन बाय, तो इसमें गलत दिखा रखा है कि ग्रास इज टेकन बाय ग्रास. जैसे ये ग्रास है जहाँ पर रेड स्पॉट है और फिर यहाँ पर ये आपको ग्रास दिखा दी है, ये गलत छपा हुआ है. इट इज़ एक्चुअली द ग्रास इज टेकन बाय ग्रास ऊपर. जहाँ पर अभी रेड स्पॉट है ये ग्रास ऊपर है. अब आप ये देखेंगे कि ये मिस्टेक कहाँ पर है. पूरा भारत है वो एनसीईआरटी को रीड कर रहा है और मैं 20 साल से एकेडमी चला रहा हूँ, ये अभी तक गलती सुधरी नहीं है. और आपको स्क्रीन जो मैं शेयर कर रहा हूँ एक्चुअली I used to take the classes of general science and technology and ecology for UPSC classes. तो UPSC के लिए मुझे एक शंकर IAS एकेडमी है, उसकी बुक है इकोलॉजी. तो वहाँ से ये मैंने फ़ोटो लिया है और स्क्रीन शेयर करी है. अब आप देख लें कि जो शंकर IAS एकेडमी है उसकी बुक के अंदर ये फ़ोटो है, यहाँ पे गलत छपा हुआ है. उन्होंने भी कोशिश नहीं करी कि अगर एनसीईआरटी के अंदर गलत छपा हुआ है तो कम से कम इसको चेंज कर दें. तो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज नॉट द ग्रास. द ग्रास इज टेकन बाय ग्रासहोपर, देन द ग्रासहोपर इज टेकन बाय फ्रॉग, द फ्रॉग इज टेकन बाय स्नेक, द स्नेक इज टेकन बाय पिकॉक. ये एक फूड चेन हो गई है. ऐसा भी है द स्नेक में बी टेकन बाय हॉक. ये फूड वेब बन गई है कि सांप को पिकॉक भी खा सकता है और सांप को हॉक भी खा सकता है. तो हॉक को भी फूड मिल जाएगा और सांप को भी, पिकॉक को भी फूड मिल जाएगा. अब पहली फूड चेन का मेंबर है दैट इज व्हाट फ्लेमिंगो, और फ्लेमिंगो को खाने के लिए फिश नहीं मिली. तो फ्लेमिंगो क्या करेगा, जो पड़ोस में दूसरी फूड चेन है उसके मेंढक को खा जाएगा. This interconnection of the food chains is known as food web. This interconnection of the various food chains is known as food web. The network of various food chains is known as food web. Then what is the significance or the importance of the food web? It provides the ecological stability. कि हमारा जो पेलिकान है, जो फ्लेमिंगो है, अगर उसको खाने को फिश नहीं मिल रही है तो उसके पड़ोस में जंगल में दूसरी फूड चेन ऑपरेट हो रही है, वो मेंढक को खा के जिंदा रहेगा. सांप को अगर पिकॉक खा रहा है लेकिन हॉक को खाने के लिए कुछ और नहीं मिल रहा है तो वो सांप को खा जाएगा. पिकॉक है वो वेज फूड भी खा लेगा, पिकॉक अर्थवॉर्म भी खा लेगा. दिस इंटरकनेक्शन ऑफ द वेरियस फूड चेन्स इज नॉन एज फूड वेब. So the importance or the significance of the food web is it provides the ecological stability. So my dear students, this is all about the food chain and food web. Our topic was the energy flow in the ecosystem. That is what trophic level interaction, and the trophic level interaction, it is studied under 3 parts.
food chain, food web and ecological pyramids. In this class we had covered food chain and food web, and in our next classes we'll discuss the ecological pyramids.